Hey kids, so this is a video on chapter of inflammation. I'll be covering all the important topics and I've tried to make it as simple as possible. Let's go. So what do you understand by inflammation? What exactly is inflammation? So inflammation is basically a response of tissues that have blood vessels. So vascularized tissues का response है, and this response basically delivers WBCs and certain cytokines or chemokines because they help in the defense against an infection to that site wherever that infection is occurring. So there is an offending agent which is causing the infection, right? And वहाँ पे WBCs आ रहे हैं और वहाँ पे chemokines जो कि molecules हैं host defense के वो आ रहे हैं और उसके response में inflammation हो रही है. Now it serves to rid the host of both the initial cause of injury and जो consequences हैं उस injury के, कुछ कभी कभी cell death भी तो होती है, तो उसको भी phagocytosis करवा के या फिर opsonization वगैरह करवा के it is getting rid of that. And the most important जो mediators जिनके बारे में हम पढ़ेंगे are phagocytic leukocytes, antibodies and complement proteins. Now brief में first of all inflammation में क्या क्या steps हैं? Recognition of the noxious agent, recruitment of WBCs and plasma proteins to that site of injury wherever these noxious agents are causing the injury, and then removal of the stimulus for inflammation, and then regulation of the response to inflammation and repair eventually. Okay, this is a very important question, NEET PG ka bhi question, and this is like a very basic thing that you have to remember. Every time something important comes in pathology, I'll be saying, oh, this is something you have to remember for lifetime, so you listen to it very carefully. So this is one of those things. Cardinal signs of inflammation, there are four. There are five actually, but four were given by Celsus. So first is rubor, that is redness, then is tumor, which is swelling, calor, which is heat, and dolor, which is pain. जहाँ पे भी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे रेडनेस होती है, ठीक है, तो उसको रूबॉर है. स्वेलिंग है क्योंकि साइज़ बढ़ता है वहाँ पे. ट्यूमर, फिर हीट, और क्योंकि हीट की जो थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा तो हीट की जो मेजरमेंट होती है वो कैलोरीज में होती है ना, तो कैलोर, एंड पेन इन डोलोर, राइट. दिस साइंस आर हॉलमार्क्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. फिर रुडोल्फ वर्चो ने एक और भी दिया कि जहाँ पे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे फंक्शियोलीसिया हो रहा है, दैट मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन भी हो रहा है उस साइट पे. So this is a picture to help you understand कि heat है, ठीक है, which is your calor, redness, your rubor, swelling हो गई, tumor, pain, dolor and loss of function or functionalesia. Now we are going to discuss both acute and chronic inflammation. So first we are discussing acute inflammation. Acute inflammation में तीन major components हैं. वेसल्स, स्मॉल वेसल्स डायलेट हो रहे हैं जिसकी वजह कैपिलरीज खुल रही हैं ज़्यादा. जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे कैपिलरीज बहुत खुल रही हैं, इसलिए ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है. और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमिबिलिटी बढ़ रही है और उसमें से WBCs और प्लाज्मा प्रोटीन निकल के ब्लड में आ रहे हैं. फिर ये जो लीकोसाइट्स हैं और फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन ब्लड से निकल के जहाँ पे इंजरी है वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं, ठीक है. सो देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स. व्हेन आई यूज्ड टू डू UG में ये पढ़ती थी मैं टॉपिक, तो हमारे यहाँ एक्यूट उस टाइम पे रॉबिन्स में लिखा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो इवेंट्स होते हैं, वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स. तो ब्लड वेसल्स में कुछ चेंजेस आती हैं और सेल्स रिक्रूट हो रहे हैं जो हमारे WBCs हैं. तो जस्ट टू हेल्प यू रिमेंबर दैट. ओके, नाउ अब ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, जो वेस्कुलर इवेंट्स जिन्हें बोलते हैं, दो चीज़ें हो रही हैं. फ्लो ऑफ ब्लड में चेंजेस आ रही हैं और परमिबिलिटी ऑफ वेसल्स में चेंज आ रही है. फ्लो ऑफ ब्लड स्लो हो रहा है, स्टेसिस हो रहा है, और परमिबिलिटी ऑफ द वेसल्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए वहाँ से WBCs और प्लाज्मा प्रोटीन्स निकल के सर्कुलेशन में आ रहे हैं. एक्स्ट्रा मतलब जो टिश्यू है वहाँ पे इंजरी वाले टिश्यू के ऊपर जा रहे हैं. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सिडेट एंड ट्रांसुडेट. एक्सिडेट हमेशा इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड होता है. ऑल्दो एक्सिडेट, ट्रांसुडेट और एडीमा की डिटेल आप जो हीमोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफली गिव यू एन एग्जांपल कि जो एक्सिडेट है उसमें प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसमें सेलुलर डेब्री होता है. दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन. पस इज एन एक्सिडेट की एग्जाम्पल. और ट्रांसुडेट है बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेट है ब्लड प्लाज्मा का, तो इसमें कोई सेलुलरिटी नहीं होती, प्रोटीन्स भी बहुत ही कम होते हैं. दिस अकर्स बिकॉज ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक इम्बैलेंस नहीं हुआ. तो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. नॉर्मली आपकी जो ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड वेसल के अंदर रहती हैं बिकॉज देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दी
colloid osmotic pressure, because जो colloid osmotic pressure that is exerted by the weight of the plasma protein, वो plasma protein की वजह से osmotic pressure है colloid वाला. फिर जो hydrostatic pressure है वो vessel का खुद का pressure है. तो दोनों में balance है, इस वजह से plasma protein blood vessels के अंदर है. बट लेट्स से कि हाइड्रोस्टैटिक बढ़ गया, क्योंकि आई टोल्ड यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेसल्स के रिलेशन से है. तो जब भी कोई वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हो गई, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया. या फिर कभी की, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, तो कभी प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गया, जैसे लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ में प्रोटीन लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन्स बनाने का काम लिवर का है. तो लिवर का जब डिजीज़ है तो बन कम रहे हैं, और तो इनमें कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है. तो इस वजह से मतलब या तो प्रोटीन्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर वेसल में प्रॉब्लम है तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो इसकी वजह से आपका फ्लूइड बाहर की तरफ जाता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसुरेट. बट इसमें स्टिल सेल्स या लो इतने नहीं होते, प्रोटीन कंटेंट फिर भी लो होता है. फिर एक्सुडेट है, उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी सब जाते हैं इसमें. क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो इसके साथ वेसोडाइलेटेशन भी एसोसिएटेड है. इंटर एंडोथीलियल गैप ज़्यादा होता है, इसमें बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है इंटर एंडोथीलियल गैप. इसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स और डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब निकल रहे हैं. तो इसमें इसकी जो फ्लूइड लीक होता है, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट और डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बट ये हीमोडायनेमिक्स के चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में है. नाउ अडीमा, अगेन ये भी उसी चैप्टर में आप पढ़ोगे. बेसिकली इट इज़ एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम और सीरस कैविटी. एक्सुडेट और ट्रांसुडेट दोनों हो सकता है. पस एक एक्सुडेट की एग्जांपल है. व्हेनेवर यू यूज़ द वर्ड परूलेंट, दैट मीन्स बेसिकली मीन्स पस. उसमें बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज होंगे, यूजली न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, डेब्री होता है, और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. नाउ कमिंग टू, हमने पढ़ा कि वेसल्स में दो चेंजेस हैं. एक तो वेसल का फ्लो वेसल में फ्लो की चेंज आई है, स्टेसिस हो गया, स्लो हो गया. तो जो वेसल का डायमीटर है उसकी वजह से वो स्लो हो रहा है, एंड परमिबिलिटी ऑफ वेसल्स भी इंक्रीज कर रही है. तो अब ये दोनों चीज़ों को हम पढ़ते हैं. सबसे पहले चेंजेस इन दी वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर. क्यों हो रहा है ये? मेन जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है वेसल्स में वो है वेसोडाइलेटेशन. ये आपको याद रखना है, वेसोडाइलेशन हो रही है या डायलेटेशन हो रही है. क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन की डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या क्या फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे बस आप ये याद रखो कि वेसल्स की स्मूथ मसल्स पे एक्ट करके वेसोडाइलेटेशन करवा रहा है हिस्टामिन. इट इज़ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. पहले आर्टरियोल्स डायलेट होते हैं, फिर वहाँ उनके बाद में जो न्यू कैपिलरीज हैं वो ओपन अप हो रही हैं. तो न्यू कैपिलरीज के ओपन अप होने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, और जहाँ पे भी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे हीट और रेडनेस हो रही है. नाउ टू समराइज, नाउ अब क्या हो रहा है कि वेसल का डायमीटर बढ़ा है, साथ में वेसल्स में से फ्लूइड भी निकल रहा है, पर सेल्स तो भी वहीं पे हैं. तो ब्लड वेसल्स, एक तो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ने की वजह से और फ्लूइड कम होने की वजह से सबसे पहले तो ब्लड फ्लो स्लो हो चुका है, और कंसंट्रेशन हो गई है आरबीसीज, क्योंकि फ्लूइड निकल गया है पर आरबीसीज तो उतने हैं, तो वो कंसंट्रेशन होता है. कभी कभी अगर फ्लूइड ज़्यादा दे देते हैं और आरबीसीज का नंबर तो सेम ही होता है, तो उसे बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन होना, जो कि बहुत सारी कंडीशंस में होती है. यू रीड अबाउट दिस इन क्लिनिकल्स. बट फिलहाल क्योंकि फ्लूइड निकल गया पर आरबीसीज तो उतना ही है, तो कंसंट्रेशन हो गया कंपैरिजन में, और जिसकी वजह से ब्लड थिक हो गया, इंक्रीज्ड विस्कोसिटी हो गई ब्लड की. एंड दीज चेंजेस आर रिजल्टिंग इन कि इनगॉर्जमेंट हो गई स्मॉल वेसल्स की, और उनमें जो ब्लड जिससे वो इनगॉर्ज है, दिस इज़ वेरी स्लोली मूविंग आरबीसीज वाला ब्लड, एंड नाउ स्टेसिस हो रहा है, जहाँ पे तो लोकल साइट पे क्या होगा, वेस्कुलर कंजेशन और लोकलाइज रेडनेस दिखेगी. नाउ तो पहली बात हमने की कि वेसल का फ्लो चेंज हो गया है ना, स्लो हो गया है वेसल में ब्लड. अब हम बात कर रहे हैं कि परमिएबिलिटी चेंज हुई है. नाउ फर्स्ट इस लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि टिश्यू है, फिर एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है, अंदर उसके प्लाज्मा प्रोटीन्स और ल्यूकोसाइट्स हैं ब्लड वेसल के ल्यूमन में. इसमें दो चीज़ें हो रही हैं परमिबिलिटी बढ़ने की वजह की. एक तो है रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, मतलब इंटर एंडोथीलियल गैप आ गया है. अब सेल्स के बीच में एक गैप आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स निकल के टिश्यूज़ में आ रहे हैं. This is induced by histamine and other mediators, and this response is rapid and short-lived. ठीक है, within minutes आता है. बट कभी कभी अगर थर्मल बर्न है या माइक्रोबियल बर्न्स है, वो तो एंडोथीलियल सेल्स का नेक्रोसिस या एंडोथीलियल सेल की डिटैचमेंट ही करा देते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड होती रहती है. ये लॉन्ग लिव्ड रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, तो ये आज टू डेज तक रहता है. वही रिस्पॉन्स तो वही है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की लीकेज.
Okay, just reading about what we just saw कि increased vascular permeability या vascular leakage, it is the hallmark of acute inflammation. ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि वेसल्स में स्टेसिस हुआ है, स्लो हो गया ब्लड वेसल, और अब हम पढ़ रहे हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. क्यों हो रहा है ये वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज? क्यों? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स हो गया और इंटर एंडोथेलियल गैप आ चुका है विच इज़ द मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर लीकेज. अब ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स और केमिकल मीडिएटर्स की वजह से. और ये जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, मतलब इमीडिएटली आता है और बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है, 15 to 30 मिनट्स. फिर आता है कि अगर कहीं माइल्ड इंजरी हो गई, वेस्कुलर लीकेज थोड़े से टाइम बाद आता है, थोड़ा सा डिलेड होता है, पर वो लंबे टाइम तक रहता है. वो जब भी एंडोथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन हुई है, माइल्ड एंडोथेलियल सेल डैमेज है, और इसकी क्लासिक एग्जांपल है सनबर्न. तो वो लेट अपेयरिंग वेस्कुलर लीकेज है. इमीडिएट और डिलेड रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि कभी पहले वो आया और बहुत देर बाद डिलेड रिस्पॉन्स आया, वो एक कंटिन्यूम के अलॉन्ग आते हैं. ओके, नाउ इफ़ वी लुक एट दिस पिक्चर अगली. अच्छा, एंडोथेलियल सेल इंजरी, वही कि हमने जो पिक्चर में देखा था कि एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस हुआ था, डिटैचमेंट हुआ था. तो जो डैमेज हुआ है एंडोथेलियम को, वो सीवियर फिजिकल इंजरीज़ की वजह से हो सकता है, माइक्रोब्स या उनकी टॉक्सिन्स की वजह से. तो न्यूट्रोफिल्स जो अडेयर करे थे एंडोथेलियम के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो और इंजर करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को और इस रिएक्शन को एम्पलीफाई करेंगे, और लीकेज इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है. ये एंडोथेलियल इंजरी की वजह से जो लीकेज है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है और वो सस्टेन रहती है कुछ घंटों तक, जब तक कि डैमेज रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं आता. नाउ ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो वेसल्स से रिलेटेड था. नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग इज इन रिलेशन टू सेल्स, जो हम बोल रहे थे सेलुलर इवेंट्स, क्योंकि जहाँ पे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स को भी आना है. तो पहले हमारे चेंजेस हुए ब्लड फ्लो में और वेस्कुलर परमेबिलिटी में, तो उसके इमीडिएटली बाद आता है इन्फ्लक्स ऑफ WBCs इनटू द टिश्यूज़, क्योंकि WBCs का जो की रोल है वो ऑफेंडिंग एजेंट जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कंट्रोल करना है. कौन से WBCs? मेनली फेगोसाइट्स, जो कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी होते हैं. वो क्या करते हैं? वो फेगोसिटिंग है, फेगोसिटिक सेल का वही फंक्शन है, वो कि इंजेस्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे बैक्टीरिया को या फिर दूसरे भी माइक्रोब्स. और अगर कुछ नेक्रोटिक डैमेज है या फॉरेन सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, उसको भी फेगोसाइटोसिस कर देंगे. और मैक्रोफेजेस का एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, वो ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे रिपेयर हमारा शुरू हो. एंड दिस होल प्रोसेस के ल्यूकोसाइट्स का वैसे ल्यूमन से निकलना और टिश्यू तक पहुंचना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है विच इज़ कंट्रोल्ड बाय साइटोकाइंस. और क्योंकि वो कीमोटैक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है तो उन साइटोकाइंस को हम कीमोकाइंस बोलते हैं. नाउ अब जो फेजेस क्या क्या हैं इसके, फर्स्ट फेज है कि ल्यूमन में 3 स्टेप्स हो रहे हैं. मार्जिनेशन हो रही है, यानी कि जो WBCs है हम अगली पिक्चर में देखेंगे डिटेल में. मार्जिनेशन हो रही है यानी कि WBC सेंटर से कंपैरेटिवली अब ज़्यादा WBCs साइड पे आ गए हैं, मार्जिनेशन एजेस पे आ गए हैं वेसल की, और ल्यूमन से दूर जा रहे हैं. रोलिंग है कि वो घूमने लगे हैं और घूमते घूमते वो एडहेयर हो जाएंगे. हम हर एक स्टेप का पढ़ेंगे कि किस किस रोल का, सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स का क्या क्या रोल है. फिर 3 ल्यूमन के अंदर क्या क्या फेजेस हैं? मार्जिनेशन, रोलिंग और एडीजन. एंडोथेलियम के एडीजन होना है. फिर अक्रॉस द एंडोथेलियम और वेसल वॉल से बाहर निकलना है, माइग्रेशन. और फिर ये माइग्रेशन कहाँ तक जाना है? टुवर्ड्स द कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई, क्योंकि जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे पहले कुछ कीमोकाइंस वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं जो WBCs को बुला रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए ब्लड वेसल के अंदर जो WBCs थे वो पहले मार्जिनेट करेंगे, रोल करेंगे, एडहेयर करेंगे टू द एंडोथेलियम, फिर माइग्रेट करेंगे क्रॉस द वेसल वॉल, और फिर जहाँ से वो कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई आ रहा था टू फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, वहाँ पे माइग्रेट करेंगे. क्योंकि वेस्कुलर एंडोथेलियम इन इट्स नॉर्मल स्टेट डज नॉट बाइंड सर्कुलेटिंग सेल्स और अलाउ देयर पैसेज. मतलब नॉर्मली थोड़ी ब्लड वेसल को छोड़ के जाते हैं WBCs, पर जब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो एंडोथेलियम एक्टिवेट हो रहा है, तो वो ल्यूकोसाइट्स को बाइंड भी करता है और फिर इवेंचुअली एग्जिट भी करते हैं इस ब्लड वेसल्स को. वही जो हम इस पिक्चर में देखेंगे इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा है. सेंटर में आपका ब्लड वेसल है, साइड में जो ब्लू आपका टिश्यू है. देखो जो WBCs आपने अगर नोट कर रहे हो तो साइड पे आ रहे हैं ना, और WBCs में पहले रोलिंग हो रही है. तो WBCs के सरफेस पे ये जो ग्रीन कलर का वो है ग्लाइकोप्रोटीन, जो साइलेटेड है, मतलब साइल लुईस एक्स ने मॉडिफाई कर दिया है इस ग्लाइकोप्रोटीन को. तो ये रोल करता है सिलेक्टिन्स की वजह से. और ये हम डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे
फिर इंटेग्रिन्स आ रहे हैं, जो इंटेग्रिन्स आ रहे हैं अब एक्सपोज हो रहे हैं। इंटेग्रिन्स पहले वो लो एफिनिटी स्टेट में होते हैं, फिर आपकी जो कीमोकाइंस रिलीज होती है ना वो प्रोटीग्लाइकन से बाइंड करती हैं, जिसकी वजह से ये जो लो एफिनिटी वाले इंटेग्रिन्स हैं वो हाई एफिनिटी वाले इंटेग्रिन्स बन जाते हैं। तो एडहीजन अब स्टेबल हो गई थी, पहले वो सिर्फ रोल कर रहे थे बट अब वो एडहेयर हो गए हैं परमानेंटली। फिर माइग्रेट करेंगे थ्रू द एंडोथीलियम, मतलब ब्लड वेसल के बाहर निकल के जा रहे हैं, उसमें जिसका रोल है CD39 PCAM का रोल है। अब जहाँ पे कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई था, माइक्रोब्स वगैरह थे, जहाँ पे ओफेंडिंग एजेंट है वहाँ पे जा रहे हैं ये सेल, जैसे अपने देख रहे होगे फेगोसाइटोसिस कर रहा है न्यूट्रोफिल माइक्रोब का। और मैक्रोफेजेस भी, क्योंकि हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, वो साइटोकाइंस रिलीज करवाते हैं और सिलेक्टिन्स को एक्टिवेट करते हैं एंडोथीलियम, एक्टिवेटेड एंडोथीलियम पे एक्ट करके, और सिलेक्टिन्स को बोलते हैं कि WBCs के साथ बाइंड करो। Okay, just to briefly see leukocyte adhesion to the endothelium. Normally RBCs are confined to the central axis, ठीक है, सेंट्रल कॉलम में, और डिस्प्लेस ल्यूकोसाइट्स टुवर्ड द वॉल ऑफ द वेसल्स ही होते हैं। बट जब ये इन्फ्लेमेशन हुई ऑफ पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, तो ब्लड क्योंकि स्लो हो गया, स्टेसिस हो गया, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा WBCs पेरिफेरल पोजीशन ले रहे हैं अलॉन्ग द एंडोथीलियम। तो ये जो ल्यूकोसाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल अलॉन्ग द एंडोथीलियम, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनेशन। अब जो स्लो WBCs हैं वो एंडोथीलियम से सिग्नल्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से पहले तो वो रोल करेंगे अलॉन्ग द वेसल वॉल, एंड फिर वो एडहीजन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। कौन से एडहीजन मॉलिक्यूल? जो इंजर्ड एंडोथीलियम एक्सप्रेस कर रहा है। हम अब पढ़ेंगे उनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले ये जो ब्रीफ में प्रोसेस है कि अटैचमेंट ऑफ द WBCs टू द एंडोथीलियम सेल्स इज मीडिएटेड बाय एडहीजन मॉलिक्यूल्स। जो ये एडहीजन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथीलियम, इंजर्ड एंडोथीलियम, जिनका एक्सप्रेशन कौन इन्हेंस कर रहा है? साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस क्यों रिलीज हो रहे हैं? जहाँ पे भी वो इंजरी वाली साइट है उसके रिस्पॉन्स में सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे WBCs को मंगवाया जा रहा है थ्रू दिस एडहीजन। और इसमें किसका रोल है? सिलेक्टिन्स एंड इंटेग्रिन्स और इनके लाइगेंड्स। और ये WBCs पे एक्सप्रेस होते हैं, एंडोथीलियम्स पे एक्सप्रेस होते हैं। अब सिलेक्टिन्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिन्स जैसे अब सिलेक्टिन की फैमिली की बात करें, 3 है, L, E और P। L सिलेक्टिन नाम में ही L है, तो ये ल्यूकोसाइट से ये ल्यूकोसाइट के सरफेस पे होता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, T सेल, B सेल के सरफेस पे, और बाइंड किससे करेगा? इंजर्ड एंडोथीलियम के ऊपर साइलेटेड लाइगेंड्स हैं उनके साथ बाइंड करेगा। E सिलेक्टिन नाम में ही एंडोथीलियम है, E है, तो ये एंडोथीलियम, जो इंजर्ड एंडोथीलियम है वो एक्सप्रेस करेगा। और किससे बाइंड करेगा? हमारे जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनके सरफेस पे साइलेटेड एंटीजन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उनके साथ बाइंड करेगा। फिर है P सिलेक्टिन। P सिलेक्टिन क्या है? एंडोथीलियम विच इज एक्टिवेटेड बाय, एंडोथीलियम के सरफेस पे है, बट दिस एंडोथीलियम अगेन इंजर्ड वाला एंडोथीलियम, साइटोकाइन, हिस्टामिन या थ्रोम्बिन, और ये भी WBCs के सरफेस पे जो साइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स है उनके साथ बाइंड करवाएगा। अब ये सिलेक्टिन्स की वजह से आपकी रोलिंग शुरू होती है। तो इनिशियल रोलिंग इंट्रैक्शन सिलेक्टिन्स मीडिएट करवाते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट के सरफेस पे S सिलेक्टिन, L सिलेक्टिन, एंडोथीलियम के सरफेस पे E सिलेक्टिन, प्लेटलेट्स और एंडोथीलियम के सरफेस पे P सिलेक्टिन्स। और ये सिलेक्टिन्स किस पे बाइंड करेंगे? साइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स पे बाइंड करेंगे अपने रिस्पेक्टिव जगह पे। अगर L सिलेक्टिन है तो वो एंडोथीलियम के ऊपर साइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा, और अगर E और P सिलेक्टिन है वो तो WBC के सरफेस पे भी साइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन है उनसे बाइंड करेगा। तो दिस पूरा एक्सप्रेशन ऑफ सिलेक्टिन और लाइगैंड और उनकी बाइंडिंग इज रेगुलेटेड बाय साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी। ओके, अब टिश्यू मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स और एंडोथीलियम सेल्स जब व्हेन दे इनकाउंटर माइक्रोब्स एंड डेड टिश्यूज, वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय रिलीजिंग वही जो साइटोकाइंस हमने पढ़ा अभी, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 और कीमोकाइंस को रिलीज करते हैं। और फिर यही वाले जो कि साइटोकाइंस हैं वो एंडोथीलियम सेल्स पे जाके एंडोथीलियल सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं एडजेसेंट टू द इन्फेक्शन, और फिर वो एडहीजन मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस कराते हैं कि एक्टिवेट करवाते हैं, इनका एक्सप्रेशन हो। Within 1 to 2 hours, the endothelial cells begin to express E selectin and the ligands for L selectin, ताकि वो L selectin से bind करें on the surface of WBC। बाकी दूसरे मीडिएटर्स P selectin में भी रोल है। क्या कराते हैं कि जैसे हिस्टामिन और थ्रोम्बिन है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं P selectin, क्योंकि नॉर्मली वो इंट्रासेलुलर स्टोर्स में होता है इन दी एंडोथीलियल सेल ग्रेन्यूल्स, तो उसको वो सरफेस पे लेके आते हैं। P selectin बेसिकली वीबल पैलेट बॉडीज होती हैं एंडोथीलियम के अंदर, उसके सेल्स के अंदर, उनके अंदर पड़ा होता है ग्रैन्यूल्स में, तो उसको सरफेस पे लेके आते हैं हिस्टामिन और थ्रोम्बिन।
Leukocytes express L-selectin at the tip of their microvilli and also express ligands for E-selectin or P-selectin, all of which bind to their complementary molecules on the endothelial cell. पहले ये क्योंकि ये नॉर्मली भी होती हैं तो ये तो नॉर्मली भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो शुरू में दीज आर लो एफिनिटी इंट्रैक्शंस विच आर विथ हैव अ फास्ट ऑफ रेट, सो दैट मीन्स दे आर इजीली डिसरप्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड. तो एज अ रिजल्ट जो ल्यूकोसाइट बाइंड करेंगे फिर डिटैच भी कर जाते हैं, बाइंड करते डिटैच करते हैं, दे बिगिन टू रोल अलॉन्ग द एंडोथेलियम सरफेस. तो एडीजन कैसे हो रहा है? एडीजन करवा रहे हैं हमारे इंटेग्रिन्स. अब जो इंटेग्रिन्स हैं वो जो आपको 3 याद रखने हैं, LFA1, MAC1 और VLA4, ये सारे WBCs के सरफेस पे एक्सप्रेस हो रहे हैं और ये बाइंड कर रहे हैं टू ICAMs एंड VCAMs ऑन द सरफेस ऑफ इंजर्ड एंडोथेलियम. The weak rolling interactions slow down the WBCs and give them the opportunity to bind firmly to the endothelium. तो ये firm adhesion किन से हो रही है? इंटेग्रिन से. और इन इंटेग्रिन्स को कौन लेके आ रहा है? TNF एंड इंटरल्यूकिन 1. इंटेग्रिन्स कौन से? VCAM वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो कि लाइगेंड है VLA4 का, और इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल ICAM1 जो कि लाइगेंड है LFA1 और MAC1 का. ल्यूकोसाइट्स नॉर्मली भी एक्सप्रेस करते हैं ये इंटेग्रिन्स को लो एफिनिटी स्टेट्स में, बट मैंने आपको बताया था ना कीमोकाइंस जो इंजरी की साइट पे आए वो प्रोटियोग्लाइकेंस पे एक्सप्रेस होते हैं, सर के साथ बाइंड करते हैं और इनका एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं, ज़्यादा अपरेगुलेट कर देते हैं. तो दी साइटोकाइंस बाइंड टू एंड एक्टिवेट द रोलिंग WBCs. तो उसका एक एक्टिवेशन का कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये अब लो एफिनिटी वाले मॉलिक्यूल्स नहीं रहते इंटेग्रिन्स, अब ये हाई एफिनिटी वाले मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, जिसकी वजह से अब फर्मली एडहेयर हो जाते हैं WBCs टू द एंडोथेलियम. तो नाउ ल्यूकोसाइट्स हैव स्टॉप्ड रोलिंग, देयर साइटोस्केलेटन इज रीऑर्गेनाइज्ड एंड दे स्प्रेड आउट ऑन द एंडोथेलियल सरफेस. अब नाउ दे हैव टू माइग्रेट थ्रू द एंडोथेलियम. तो ये जो माइग्रेशन है थ्रू द इंटैक्ट एंडोथेलियम वो ट्रांस माइग्रेशन या डायपीडेसिस है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन मीडिएट करता है? ये CD31 या PCAM1 जिसे प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडिशन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. ठीक है, इट मीन्स मेनली अकर्स इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स. तो जो अडहेयर हो चुके हैं WBCs, तो कीमोकाइंस आते हैं on the adherent leukocytes and they stimulate the cell to migrate through this interendothelial gap toward the chemotactic stimuli, जहाँ पे भी केमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रखा है कीमोकाइंस की वजह से, जहाँ एट द साइट ऑफ इंजरी. सो वही चीज़ है कि आफ्टर ट्रिवर्सिंग द एंडोथेलियम WBCs spear the basement membrane of the blood vessel by secreting collagenesis. वो एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में आ गए. बेसमेंट मेम्ब्रेन बाद में नॉर्मल हो जाती है. जो सेल्स निकले हैं कहाँ पे जा रहे हैं? टुवर्ड द कीमोटैक्टिक ग्रेडियंट और वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं जाके. अब कीमोटैक्सिस क्या होता है? कीमोटैक्सिस क्या है? बेसिकली लोकोमोशन अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट. एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल पेप्टाइड. तो जब बैक्टीरियल पेप्टाइड के अंदर स्पेशली N-फॉर्माइल मिथोनिन टर्मिनल अमीनो एसिड होता है और कुछ लिपिड्स भी. एंडोजेनस केमिकल मीडिएटर्स हैं जैसे साइटोकाइंस, पर्टिकुलरली कीमोकाइन फैमिली के, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C5a और फिर एरेकोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स एंड ल्यूकोट्राइन B2. इसमें भी ल्यूकोट्राइन B4 मेनली, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो ये सारे जो कीमोकाइंस हैं, कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं, कीमोकाइंस हैं, बाइंड टू द सरफेस ऑफ WBCs वाया GPCR. तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आपने पढ़ा होगा फार्मा में, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जो रिसेप्टर्स होते हैं. ये सारे मीडिएटर्स जो केमिकल कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं या कीमोकाइंस हैं, एक्सोजेनस या एंडोजेनस की वजह से जो भी रिलीज हुए, ये WBCs के सरफेस के ऊपर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर एक्टिवेट गए. तो अगर आपको याद होगा कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर की वजह से जो फिर उसके बाद सेकेंड मैसेंजर्स एक्टिवेट होते हैं, उन सेकेंड मैसेंजर्स की वजह से पॉलीमराइजेशन होती है ऑफ द एक्टिन एट द लीडिंग एज ऑफ द सेल एंड लोकलाइजेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट एट द बैक. तो रीऑर्गेनाइज हो रहा है ये साइटोस्केलेटन, इसलिए ल्यूकोसाइट्स की एजेस पुल होने लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन. तो रिजल्ट क्या आता है कि ल्यूकोसाइट माइग्रेट करता है टुवर्ड्स कीमोट्रैक्टिव जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है. अब वहाँ पे पहुँच तो गया, ओफेंडिंग एजेंट के पास WBCs हमारे फेगोसाइटिक जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं हमारे मेन फेगोसाइट्स, पहुंच तो गए. अब क्या कर रहे हैं? फेगोसाइट्स कर रहे हैं, फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रिकॉग्नाइज द माइक्रोब्स एंड डेड सेल एंड दे इंड्यूस सेवरल रिस्पॉन्सेज, जिन्हें कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन हो रही है. दिस इज रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्नलिंग पाथवे जो भी मैंने पढ़ा, दैट आर ट्रिगर्ड इन द ल्यूकोसाइट्स. बेसिकली जब वो सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है इन रिस्पॉन्स टू G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करने वाले कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई, जब फिर सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट हुआ तो दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम एंड इट विल एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, प्रोटीन काइनेज C and phospholipase A2 which you.
तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स बाय फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन बोन मैरो, पर दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। बोन मैरो वाले जो मैक्रोफेजेस आते हैं ना, वो हमेशा इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में आते हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा भी होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या आपने यू मस्ट हैव रेड दिस इन +1 + 2 ओनली, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस होते हैं, कुफर सेल्स वगैरह, साइनस हिस्टियोसाइटोसिस, वो डिफरेंट साइड पे होते हैं। वो टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस वो नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं स्टेम सेल्स। फिर जो न्यूट्रोफिल्स है उनका लाइफ स्पैन थोड़े दिनों के लिए होता है, सिमिलरली इन्फ्लेमेटरी मैक्रोफेजेस का, पर टिश्यू रेजिडेंट तो सालों तक वहीं पे रहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स का जो रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन का, वो थोड़ा रैपिड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, डिग्रेनुलेशन की एक्टिविटी की वजह से होता है। मैक्रोफेजेस का प्रोलॉन्ग्ड और स्लोअर होता है। एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से भी इंड्यूस होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये पूरा NADPH ऑक्सीडेज वाला जो पाथवे है। और बट ये नहीं होते मैक्रोफेजेस उससे इंड्यूस, बस नाइट्रिक ऑक्साइड वाला जो मैकेनिज्म है उससे ज़रूर इंड्यूस होते हैं मैक्रोफेजेस। बाकी डीग्रेनुलेशन मेन रिस्पॉन्स है साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट की वजह से न्यूट्रोफिल्स का, बट नॉट ऑफ मैक्रोफेजेस। और साइटोकाइन प्रोडक्शन ज़्यादा मेन रिस्पॉन्स है मैक्रोफेजेस का, नॉट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। और नेट फॉर्मेशन, वो तो नाम में ही न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप फॉर्मेशन है, वो भी न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है। और लाइजोसोमल एंजाइम वो भी न्यूट्रोफिल्स इंड्यूस करते हैं सिक्रीशन। अब आगे स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले रिकग्नाइज करना है उस इंजेस्टेड ऑफेंडिंग एजेंट को, फिर उसको अटैच करना है जिस चीज़ को हमने इंजेस्ट करना है ल्यूकोसाइट के साथ, जो हमारा फेगोसाइटिक सेल है उसके साथ ऑफेंडिंग एजेंट को अटैच करना है, फिर उसको इनगल्फ करना है एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ फेगोसिटिक वैक्यूल मेम्ब्रेन है उसके आसपास, फिर उसको इंट्रासेलुलरली ही किल करना है। इसके लिए हमें फेगोसिटिक रिसेप्टर चाहिए, इनगल्फमेंट उस चीज़ की ऑफेंडिंग एजेंट की, और फिर सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन। ये पिक्चर में ही डाला है मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं डाला। तो इफ़ यू सी, फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन। फेगोसाइटोसिस का फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन एंड अटैचमेंट। पहले रिसेप्टर्स के थ्रू, फेगोसाइट के सरफेस पे भी रिसेप्टर हैं और माइक्रोब के सरफेस पे भी रिसेप्टर हैं, वो एक दूसरे को रिकग्नाइज करेंगे, बाइंड करेंगे, फिर इनगल्फ होगा और उसके आसपास पूरी मेम्ब्रेन जाती है, तो वो पूरा फेगोसिटिक वैक्यूल बनता है। फिर लाइजोसोम उससे फ्यूज़ होता है, और लाइजोसोम के तो सारे एंजाइम किलिंग वाले होते हैं, तो वो अब सेल को मार देगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मीडिएटर्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वो क्या हैं? सबसे पहले आते हैं, अब मीडिएटर्स डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन के, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। वेसो एक्टिव अमाइंस, लिपिड प्रोडक्ट्स जैसे वेसो एक्टिव अमाइंस यानी कि आपके हिस्टामिन वगैरह, और लिपिड प्रोडक्ट्स जैसे प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइंस, और एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के भी कुछ। तो ये या तो सेल सिक्रीट करते हैं या ये प्लाज्मा प्रोटीन से बनते हैं। और जो सेल ड्राइव मीडिएटर्स हैं वो बेसिकली उनके अंदर ना ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर, जैसे मास्ट सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स के अंदर पड़ा है हिस्टोमिन, ठीक है, तो वो वैसे रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और जो मेजर सेल टाइप्स जिनके अंदर मीडिएटर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, वो है मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल एंड मास्ट सेल्स। वेसो एक्टिव अमाइन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, इनका नाम ऐसा क्यों है वेसो एक्टिव? बिकॉज दे एक्टिंग ऑन द वेसल्स। दे आर स्टोर्ड एज प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स इन सेल्स, ग्रैन्यूल्स में पड़े होते हैं। अमंग दी फर्स्ट मीडिएटर्स टू बी रिलीज्ड इन इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन का रिचेस्ट सोर्स क्या है? मास्ट सेल्स, पर बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स भी रिलीज कराते हैं। हिस्टामिन इज स्टोर्ड इन मास्ट सेल ग्रैन्यूल्स नॉर्मली, एंड स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होता है और ये रिलीज होता है। कौन से स्टिमुलाई हो सकते हैं? फिजिकल इंजरी हो सकती है, या फिर इमीडिएट टाइप हाइपरसेंसिटिविटी में हो सकता है, अगर आपने पढ़ा हो हाइपरसेंसिटिविटी चैप्टर, आई हैव पुट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड देन कॉम्प्लीमेंट पाथवे में भी एनाफाइलोटॉक्सिन्स के रिस्पॉन्स में भी मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होता है। फंक्शन क्या है हिस्टामिन का? डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स एंड इंक्रीजेज द परमिबिलिटी ऑफ वेन्यूल्स। प्रिंसिपल, इट इज़ द प्रिंसिपल मीडिएटर ऑफ द इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। अगर हमने याद हो कि आपको 2 फेज थे इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी के भी, एक तो इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज आता है और फिर एक डिलेड प्रोलॉन्ग्ड वाला भी फेज था। तो इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज में हिस्टामिन का रोल है, क्योंकि ये इंटरएंडोथेलियल सेल में गैप प्रोड्यूस करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि बाइंड करता है टू द रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। और जो एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग्स होते हैं, काफ़ी तरह एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, उनका मैकेनिज्म यही है कि इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कराना। और एक और भी चीज़ है कि इट ऑल्सो कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम स्मूथ मसल्स। सीरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 5-HT, ये भी प्री फॉर्म्ड वेसो एक्टिव मीडिएटर है। कहाँ प्लेटलेट्स के अंदर है। और GIT के न्यूरोएंडोक्राइंस, ये याद रखना कि सीरोटोनिन इज़ द मॉलिक्यूल दैट मेक्स यू फील गुड। तो फूड
दैट इज़ वाई फूड मेक्स यू फील गुड. पार्ट ऑफ इट इज देयर इज सम मैकेनिज्म ऑफ इट कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द GIT एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एक्ट करता है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर 5-HT टू सेरोटोनिन. इट इज़ ऑल्सो वेसोकंस्ट्रिक्टर, पर उसका इन्फ्लेमेशन में इसका इतना रोल नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि न्यूरो ट्रांसमीटर है नर्वस सिस्टम में भी और GIT में भी. इसका वी नो दैट इट इज़ अ हैप्पी हार्मोन और ब्रेन में एक्ट कर रहा है और GIT में. अब आ गए इरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स. मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में इरेकिडोनिक एसिड होता है, तो उससे ये रिलीज हो रहे हैं. एंड ये फंक्शन क्या है इनका? वेस्कुलर और सेलुलर रिएक्शन जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वेस्कुलर इवेंट्स या सेलुलर इवेंट्स वो सारे इंड्यूस कराता है. इरेकिडोनिक एसिड खुद एक 20 कार्बन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो डाइटरी सोर्सेज से बना है या फिर प्रीकॉर्सर मॉलिक्यूल से बना सकता है जिसका नाम है लिनोलिक एसिड विच इज़ एन एसेंशियल फैटी एसिड. मैकेनिकल, केमिकल या कोई भी फिजिकल इंजरी, फिजिकल स्टिमुलाई की वजह से जब सेल इंजरी होती है तो फॉस्फोलाइपेज आए थे, याद है वी टॉक्ड अबाउट कि फॉस्फोलाइपेज A2 आया था, तो उन्होंने मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट किया और उस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड टूट के इरेकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. अब देखो ये वही है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेसेस ने एक्ट किया और इरेकिडोनिक एसिड एक्ट किया. जब इन्फ्लेमेटरी वाले, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसीजर है ना, तो जब इन्फ्लेमेशन वाले जो डिजीज़ होते हैं ना उनमें स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है, तो स्टेरॉइड इसी स्टेप को इनहिबिट करते हैं, फॉस्फोलाइपेसेस को इनहिबिट करते हैं. हाँ, इरेकिडोनिक एसिड ड्राइव मीडिएटर्स जिन्हें आइकोजानाइड भी बोला जाता है क्योंकि 20 का मतलब आइकोजा होता है. दे आर सिंथेसाइज बाय 2 क्लासेस ऑफ एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेसिस जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं और लाइपोऑक्सीजनेसिस जो कि लिपिड वाले बनाते हैं, ल्यूकोट्राइन्स और लाइपोक्सिन्स. ये एंड दीज बाइंड टू G protein couple receptors on many cells and they mediate basically every step of inflammation, जो हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज़ वेरी दिस पाथवे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसकी पिक्चर भी आएगी आगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you must have read your anti-inflammatory drugs. ठीक है, तो अगर ये वाला पाथवे समझ आ गया यहाँ पे भी तो you must remember anti-inflammatory drugs का mechanism of action भी याद रहेगा. प्रिंसिपल एक्शन क्या है इरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइज का? वेसोडाइलेशन भी कराते हैं, कुछ वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, कुछ वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और कुछ कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइड एडिशन करा रहे हैं. तो बेसिकली हर फंक्शन है इनका. सबसे पहले वेसोडाइलेशन फंक्शन है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स का. PGI2 हो सकता है, PGE1 हो सकता है और PGE2 और PGD2. और फिर वेसो कंस्ट्रिक्शन भी है. वेसो कंस्ट्रिक्शन कौन कौन करवाते हैं? थ्रोम्बोक्सेन्स और ल्यूकोट्राइन C4D4E4. ल्यूकोट्राइन C4D4E4 का एक और फंक्शन है, वो वेस्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ाएंगे. और ल्यूकोट्राइन B4 और HET इनका फंक्शन है कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइड्स की एडिशन. हमने पीछे भी पढ़ा था कि ल्यूकोट्राइन B4 का कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइड एडिशन में रोल है. नाउ लुक एट दिस फ्लो चार्ट. इरेकिडोनिक एसिड बना, हमने पढ़ा, वो फॉस्फोलाइपेसेस ने एक्ट किया था मेम्ब्रेन पे और इरेकिडोनिक एसिड निकला. अब इसके ऊपर एक्ट करेंगे साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम जिससे बना PGI2, जिससे बना PGH2 और PGI2. PGI2 का अपने फंक्शन है जो अभी हमने पढ़े, वेसोडाइलेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट कराते हैं. बट फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 भी निकलता है PGH2 से ही, तो वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है. और PGD2 और E2 भी निकलते हैं. और अगर लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम तो ये कॉक्स पाथवे है, फिर LOX पाथवे, लॉक्स पाथवे है, उसमें पहले HPET बनता है, फिर HET बनता है जो भी हमने पढ़ा कि कीमोटैक्सिस में रोल है. फिर HEPET से ही LTA4, पहले ल्यूकोट्राइन A4 बनता है, फिर ल्यूकोट्राइन B4 बनता है. ल्यूकोट्राइन B4 का भी कीमोटैक्सिस में फंक्शन है. फिर ल्यूकोट्राइन C4D4 और E4 इनका वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाते हैं. 2 चीज़ें हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाएंगे और ब्रोंकोस्पाज्म कराएंगे. और डायरेक्टली HPTE से लाइपोऑक्सीजनेस भी 2 तरह का है, 5 लाइपोऑक्सीजनेस और 12 लाइपोऑक्सीजनेस. तो यहाँ पे अगर 12 लाइपोऑक्सीजनेस एक्ट करता तो वो लाइपोक्सिन LXA4 और लाइपोक्सिन B4 बनाता है. वो न्यूट्रोफिल एडिशन और कीमोटैक्सिस को रोकता है. ठीक है, तो यहीं पे आपको समझ आ जानी चाहिए. जैसे एस्पिरिन और इंडोमेथासिन कॉक्स पाथवे को इनहिबिट कराते हैं और फिर लाइपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर्स होते हैं जो लॉक्स पाथवे को इनहिबिट कराते हैं. आपके फार्मास्यूटिकल साइड ड्रग्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसी पाथवे पे है सारा. अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो साइटोकाइंस है काफ़ी तरह की हैं, हमने पढ़ा है सारी. TNF, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और कीमोकाइंस और इंटरल्यूकिन 17. तो अब देखो, सबसे पहले लोकल इन्फ्लेमेशन में और सिस्टेमिक प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्या है और सिस्टेमिक पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इन साइटोकाइंस का.
तो जब लोकल इन्फ्लेमेशन है वो तो हमने अभी पढ़ा है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 आते हैं और वो इंक्रीज एक्सप्रेशन कराते हैं हमारे एडिशन मॉलिक्यूल्स का, और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है उसके रिजल्ट में, और इंटरल्यूकिन 1 और कीमोकाइंस और रिलीज होते हैं और कीमोटैक्सिस होता ही रहता है, वो पूरा सर्कल चलता रहता है। फिर प्रोटेक्टिव क्या फंक्शन है कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 इंटरलिंक 6 जब ब्रेन पैक करते हैं तो फीवर होता है, जब लिवर पैक करते हैं तो एक्यूट फेस प्रोटीन निकलते हैं, जो इन्फ्लेमेशन में निकलते हैं, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 और 6 जब बोन मैरो में एक्ट करते हैं तो WBCs प्रोडक्शन भी होता है, तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है। बट पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जब हार्ट पैक करता है तो लो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ब्लड वेसल पैक करता है तो थ्रोम्बोसिस करवा सकता है, वेस्कुलर परमिटी बढ़ गई, और दूसरे टिश्यूज़ पे जैसे स्केलेटल मसल वगैरह में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करवाता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, इसमें तो बहुत ही ब्रीफ में है कि लेक्टिन पाथवे है, आपका क्लासिकल पाथवे होता है, फिर आपका ऑल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथ में वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, और अल्टरनेटिव पाथ में तो माइक्रोब इसके C3b माइक्रोब ने एक्टिवेट किया है। तो बेसिकली ये तीनों पाथवे, लेक्टिन पाथवे भी, ये तीनों C3b पे कन्वर्ज कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर कि C3b पे कन्वर्ज करते हैं, और इवेंचुअली C5a C3a का फंक्शन इन्फ्लेमेशन में है, और C3b का फंक्शन फैगोसाइटोसिस में है, और मैक है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वो लाइसिस करवाता है मैक्रोफेजेस माइक्रोब्स का। मैंने ये जो कीमोकाइंस है या साइटोकाइंस या मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, मैंने इन्हें बहुत ब्रीफ में और ये बस इमेजेस में ही ज़्यादा और टेबलेटर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, बिकॉज थ्योरी में बेसिकली यही चीज़ें एक्सप्लेन किया है। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन देम इन पिक्चर्स। ओके, अब आ गया मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हमने पहले भी पढ़ा है कि डायलिटेशन होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, और दूसरा है कि WBCs का एक्यूमुलेट होना। तो बेसिकली वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स, जस्ट सो दैट यू गाइज रिमेंबर, हमें पता है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल न्यूट्रोफिल्स हैं, यू कैन टेल जो ग्रेन्यूल्स भी पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, और न्यूट्रोफिल्स की लोब्स हैं, ठीक है। आई होप यू नो व्हाट न्यूट्रोफिल लुक्स लाइक, दैट्स आई पुट द पिक्चर्स। अब मॉर्फोलॉजिकली कैसे सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है। सीरियस बेसिकली है कि बॉडी कैविटीज से फ्लूइड का निकलना, उसमें कोई माइक्रोब या WBC नहीं होते, बट आपकी बॉडी कैविटीज़ जो कि पेरिटोनियल कैविटीज़ हैं ना, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल और ऐसा, और जो जितनी भी आपकी बॉडी कैविटीज़ हैं, पेरिटोनियल कैविटी है ना, तो उन सब में उन सब में जो प्लाज्मा है उन सब के फ्लूइड में, तो वहाँ से निकलता है ये। और या फिर मीजोथीलियल सेल्स होते हैं, इस जो बॉडी कैविटीज़ है उनकी लाइनिंग मीजोथीलियल सेल्स के थ्रू होती है, वो मीजोथीलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, तो वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये फ्लूइड। बट इस फ्लूइड में कोई माइक्रोब्स या WBCs नहीं होते, बट हाँ इफ्यूजन्स भी हो सकती है नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। और इसकी और दूसरी एग्जांपल्स है कि जब ब्लिस्टर्स निकलते हैं स्किन पे, कभी कभी ब्लिस्टर देखा होगा आपने, तो उसमें भी सीरियस फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होता है। फिर फिब्रिनस है, जब वेस्कुलर लीकेज बहुत बड़ी होती है या कुछ प्रोकोगुलेंट स्टिमुलाई होता है तो फिब्रिनस एक्सुडेट बनता है, तो ये बॉडी कैविटी की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन करवाता है। और फिब्रिन ना हिस्टोलॉजिकली बहुत ही पिंक पिंक दिखता है, यूसिनोफिलिक, ठीक है। और फिर प्रोडक्शन ऑफ पस है, वो भी एक एक्सीरेट ही है, जिसमें हमें पता था, हमने पढ़ा है कि न्यूट्रोफिल मिलता है, नेक्रोटिक सेल मिल सकते हैं, और डेब्री और एडिमा का फ्लूइड और माइक्रोब खुद भी मिल सकता है। और मोस्ट कॉमनली लिक्विफेक्टिव टिश्यू नेक्रोसिस वाली इन्फेक्शन स्टैफिलोकोकाई मेनली, इसे पायोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। फिर परुलेंट सपुरेटिव इन्फ्लेमेशन, वही उसके अंदर ही, पस के अंदर ही एसोसिएशन में, कि ये एब्सेस है कि पस बन रही थी, उसके आसपास वो वॉल्ड ऑफ हो गई है, ठीक है। तो उसके आसपास एक लोकलाइज कलेक्शन है ऑफ बरिड इन अ टिश्यू एंड ऑर्गन, कन्फाइंड स्पेस के विद इन है, और ये भी सीडिंग जब बैक्टीरिया बहुत टिश्यू तक चला जाता है तब होता है, ठीक है। अल्सर्स, अगेन अल्सर बेसिकली एक अल्सर हमेशा ना म्यूकोजा के पास होगा, सरफेस के पास होगा हमेशा, या सरफेस के ऊपर होगा या सरफेस के पास होगा। दिस इज़ अ लोकल डिफेक्ट या एक्सकवेशन ऑफ द सरफेस किसी टिश्यू का या ऑर्गन का, ठीक है। तो प्रोड्यूस बाय द शेडिंग ऑफ द स्लफिंग ऑफ द इन्फ्लेम नेक्रोटिक टिश्यू। मोस्ट कॉमनली जहाँ जहाँ पे भी म्यूकोजा है, माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में म्यूकोजा है, जेनिटरी यूरिनरी ट्रैक्ट में है, ठीक है। और फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जब वेस्कुलर इंसफिशिएंसी होती है तब भी अल्सर्स बनते हैं। आप पढ़ोगे डायबिटिक अल्सर्स होते हैं, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स में अल्सर्स बन सकते हैं, और जब पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ होता है उसमें अल्सर्स, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ यू विल रीड अबाउट दिस इन सर्जरी, तो इनमें भी अल्सर्स बनते हैं, इन पेशेंट्स में भी। और क्लासिक एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर, जब भी स्ट्रेस में पेप्टिक अल्सर बन सकता है, या फिर H. pylori की वजह से पेप्टिक अल्सर बन सकता है, तो उसमें एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को एग्जिस्ट करती है। बट वो बेसिकली यही हम पढ़ रहे हैं कि
एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अल्सर्स बनते हैं, और पेप्टिक अल्सर में भी हमें पता है स्टमक की जो मिकोजा है वो उसमें डिफेक्ट आता है और वो अल्सर बन जाती है। बेसिकली अल्सर इज़ लाइक अ क्रेटर, और तो वो सरफेस पे ही होगा। आउटकम क्या है, कंप्लीटली ठीक हो जाएगी, या फिर हीलिंग बाय स्कारिंग या फाइब्रोसिस, या फिर इट मे प्रोग्रेस टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। दिस समथिंग कॉल्ड एज एक्यूट ऑन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी, उसमें वो भी पढ़ेंगे आगे। अब आ गई आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बेसिकली इन्फ्लेमेशन जो लंबे समय तक के वीक्स और मंथ्स में है, बेसिकली इसमें टिश्यू की इंजरी भी हो जाती है और कभी कभी रिपेयर भी होता है इसमें। तो इट में फॉलो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, या फिर इंसीडियसली डायरेक्टली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन, और एज अ लो ग्रेड स्मोल्डरिंग रिस्पॉन्स जिसकी कोई प्रीसीडिंग एक्यूट रिस्पॉन्स नहीं है, एक्यूट रिएक्शन नहीं है। कॉजेज वही प्रसिस्टेंट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन प्रसिस्टेंट रही तो क्रॉनिक बनी हो सकती है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्रॉनिक हो सकती है। टॉक्सिक एजेंट्स के वजह से हो सकती है। एक्सोजेनस हो सकता है ये एजेंट, टॉक्सिक एजेंट जैसे पर्टिकुलेट सिलिका, या फिर एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की वजह से जब एथेरोस्क्लेरोसिस, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन उसमें होती है। आपने CVS वाले चैप्टर में यू मस्ट हैव रेड के वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का पूरा स्ट्रक्चर, तो उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, बेसिकली मोनोन्यूक्लियस सेल्स आते हैं। कौन से मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। काफ़ी तरह के सेल्स का रोल होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, बट जस्ट रिमेंबर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मेन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारे न्यूट्रोफिल्स थे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारे मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हैं। इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होती है क्योंकि प्रसिस्टेंट ऑफेंडिंग एजेंट इतने लंबे समय तक पड़ा रहा है, या फिर इवन इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से हो सकती है। और फिर हीलिंग भी होती है कभी कभी, जैसे उसमें डैमेज टिश्यू रिप्लेस होगा, वहाँ पे स्कारिंग होगी रिप्लेसमेंट में, या फिर फाइब्रोसिस होगा, साथ में एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस भी। अब सेल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अब हर एक सेल का हम धीरे धीरे रोल पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या क्या हो रहा है, WBCs आ रहे हैं, टिश्यू का डैमेज हो रहा है और फाइब्रोसिस भी हो रहा है। अब लोकल एक्टिवेशन ऑफ सेवरल सेल टाइप्स की वजह से और कुछ मीडिएटर्स की वजह से। तो अब सेवरल सेल टाइप और उनके मीडिएटर्स पढ़ेंगे। अब सबसे हम पढ़ेंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या हैं, कहाँ बन रहे हैं, क्या रोल है इनका इन्फ्लेमेशन में, और ये एक्टिवेशन बड़ी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैक्रोफेजेस एक्टिवेट कैसे होता है नॉर्मली, मतलब नॉट नॉर्मली इन्फ्लेमेशन में। और फिर लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे और दूसरे तरह के 1-2 सेल्स भी पढ़ेंगे। अब आगे मैक्रोफेजेस का रोल। दीज आर द डोमिनेंट सेल्स इन मोस्ट क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। दे सिक्रीट साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन में रोल है और ग्रोथ फैक्टर्स का आपकी रिपेयर वगैरह में रोल है। मैक्रोफेजेस बेसिकली प्रोफेशनल फेगोसाइट्स हैं और ये एलिमिनेट करते हैं माइक्रोब्स को, डैमेज टिश्यू को। कहाँ पे बन रहे हैं, डिफरेंट लाइफ टाइम में, डिफरेंट जगह पे। अर्ली डेवलपमेंट में तो ये बन कहाँ रहे हैं नॉर्मली, पोस्ट नेटल लाइफ में, मतलब आफ्टर बर्थ बोन मैरो में बनते हैं प्रोजेनिटर सेल से, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। और एम्ब्रियोनिक यॉक सैक में और फीटल लिवर में बन रहे हैं ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। और अगर ब्लड में आते हैं, जो ब्लड में हमारे मोनोसाइट्स होते हैं, दे आर बेसिकली सर्कुलेटिंग मैक्रोफेजेस ओनली। और आपको पता होगा कि स्पेसिफिक टिश्यूज़ में, स्पेसिफिक लोकेशन में मैक्रोफेजेस डिफ्यूजली नॉर्मली भी इन्फिल्ट्रेटेड है। हमने पढ़ा था ना, इन्फ्लेमेटरी मैक्रोफेजेस होते हैं और टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस। तो ये वही टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस जैसे लिवर में होते हैं कुफ्फर सेल बोलते हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड में साइनस हिस्टोसाइट, CNS में माइक्रोग्लाया सेल्स बोलते हैं, लंग्स में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। तो ये पूरा मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम है, जिसे पहले रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बोलते थे, गलत नाम था, बट मोनोन्यूक्लियर फेगोसिस्टिक सिस्टम है ये, ठीक है, मैक्रोफेजेस का। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में मोनोसाइट्स एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू की तरफ जल्दी चले जाते हैं। विद इन 48 आवर्स दे मे कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट सेल टाइप। एंड बेसिकली जैसे न्यूट्रोफिल्स एमिग्रेट कर रहे हैं एडहेजन मॉलिक्यूल और केमियोटैक्टिक फैक्टर्स की वजह से, वैसे ही मोनोसाइट्स भी जाते हैं। अब मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन 2 तरीके से होती है। क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं, M1 बोलते हैं उन्हें। अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को M2 बोलते हैं। तो जो क्लासिकली एक्टिवेटेड है बेसिकली माइक्रोब्स की वजह से, जैसे जब माइक्रोब्स आके बाइंड करें या फिर इंटरफेरॉन गामा की वजह से, तो वो प्रोड्यूस कर देंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर लाइसोसोमल एंजाइम, जिसकी वजह से बेसिकली फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। आपके सेल मतलब बेसिकली उसको इनगल्फ करेंगे माइक्रोब को, और सेल की और बैक्टीरिया की इंटरसेलुलर किलिंग, ठीक है। फिर ये तो था किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स, उसका कंट्रोल करना। फिर साथ में एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है इंटरल्यूकिन्स की वजह से, 1, 12, 23 कीमोकाइंस। फिर ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड 13 या 4 की वजह से, क्योंकि
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में सिर्फ फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, साथ में टिश्यू रिपेयर, एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस वगैरह हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का है ये फंक्शन, वो क्या करते हैं, इंटरलेकिन 13 और 4 स्टिमुलेट किया ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को, और उन्होंने ग्रोथ फैक्टर्स और TGF बीटा निकाले, जिसकी वजह से टिश्यू रिपेयर, एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोसिस होता है, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी शुरू होते हैं। अब आगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बहुत बड़ा रोल है। Microbes and other environmental antigens activate T and B lymphocytes which amplify and propagate chronic inflammation. Persistent और severe होती है इनके द्वारा जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जाती है, बिकॉज मेनली लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपको पता हो, बी लिम्फोसाइट्स ना। ये जस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ लिम्फोसाइट लुक्स, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है और सेंटर में न्यूक्लियस है। और ग्रैनुलोमेटस जो इन्फ्लेमेशन है वो मेमोरी लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्स में अपेरेंटली प्रोड्यूस होती है, और ऑटोइम्यून डिजीज़ में जो इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, उसमें भी लिम्फोसाइट्स मेन सेल्स होते हैं। जो CD4 पॉजिटिव T लिम्फोसाइट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, और वो भी प्रमोट करते हैं इन्फ्लेमेशन बाय सिक्रीटिंग साइटोकाइंस, क्योंकि हम रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स इन इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं। तो CD4 पॉजिटिव T लिम्फोसाइट्स तरह तरह के साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। अब ये आपने इम्यूनिटी के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, T हेल्पर 1 लिम्फोसाइट, T हेल्पर 2 लिम्फोसाइट और T हेल्पर 17 लिम्फोसाइट, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। T हेल्पर 1 सेल इंटरफेरॉन गामा साइटोकाइन रिलीज कराते हैं, और जो कि क्लासिकल पाथवे के मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराएगी, और हमने पढ़ लिया कि मैक्रोफेजेस ने क्या करना है इन्फ्लेमेशन में। फिर T हेल्पर 2 सेल इंटरलेकिन 4, 5 और 13 को रिलीज करते हैं, और वो एओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करेगी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएगी इन्फ्लेमेशन में, और अल्टरनेटिव पाथवे से मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगी। फिर आते हैं T हेल्पर 17 सेल, और वो इंटरल्यूकिन 17 और कुछ साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं। वो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करते हैं, साथ साथ मोनोसाइट को, क्योंकि कुछ एक्यूट ऑन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस होती हैं विच विल डिस्कस, जिसमें न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं। Both T helper 1 and 17 are involved in defense against many bacteria, virus and autoimmune diseases, जहाँ पे इंजरी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की है। T helper 2 cells are important in defense against helminthic, parasitic, allergic, मतलब IgE related, eosinophilic related, ये पूरी T helper 2 मैकेनिज्म है। और लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का बाय डायरेक्शनल रोल है, मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं और प्रोपगेट करते रहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मैक्रोफेजेस एंटीजन्स डिस्प्ले करते हैं, T सेल्स, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है इम्यूनिटी के चैप्टर में पूरी डिटेल में। और फिर उसके रिस्पॉन्स में दे प्रोड्यूस साइटोकाइंस, फिर स्टिमुलेट करते हैं T सेल रिस्पॉन्स, फिर एक्टिवेटेड T सेल फिर साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, जो और मैक्रोफेजेस को रिक्रूट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और एंटीजन प्रेजेंटेशन होगा और साइटोकाइन सिक्रेशन। तो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स का बाय डायरेक्शनल प्रोपगेशन है ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये साइकिल पूरा चलता रहता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, और इसकी क्लासिक एग्जांपल है इस पूरे कॉन्सिक्वेंस की, T सेल और मैक्रोफेज की रिश्ते की, ऑफ ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। अब इस हिस्टो में ग्रैनुलोमा कैसा दिखता है, आई वांटेड टू शो यू गाइज। सेंटर में आपको ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल दिख रहा है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल है, बाकी सेल्स के कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है, और इसमें पिंक पिंक सा साइटोप्लाज्म है, कितने सारे न्यूक्लियाई हैं पेरीफेरी पे, इसे बोलते हैं लैंग हैंड टाइप जॉइंट सेल, ग्रैनुलोमा में मिलता है। और पीछे ये जो ब्लू छोटे छोटे सेल्स हैं वो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, और बीच में थोड़ा थोड़ा नेक्रोसिस भी है। अब आगे इओसिनोफिल्स पे। इओसिनोफिल्स वही T हेल्पर 2 सेल्स और हेलमेंथिक पैरासिटिक से रिश्ता है इसका, और आपकी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 में। इट इज़ अबंडेंट इन इम्यून रिएक्शंस मीडिएटेड बाय IgE एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ये एडहीजन मॉलिक्यूल्स जो कि दूसरे सेल्स को रिलीज कराते हैं उनके रिस्पॉन्स में भी आते हैं, या फिर इसके स्पेसिफिकली खुद के कीमोकाइंस भी हैं जैसे ईओटेक्सिन, और फिर इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट है इओसिनोफिल भी ना, तो इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो है MBP या मेजर बेसिक प्रोटीन, जो कि टॉक्सिक होता है हेलमेंथिक सेल्स को, पर होस्ट के सेल्स को भी इंजर कर सकता है। तो ये कंट्रोल करता है हमारा हेलमेंथिक इन्फेक्शंस को, पर थोड़ा बहुत टिश्यू डैमेज भी कर देता है। और एलर्जीज़ में जो इम्यून रिएक्शंस होती है तो उसमें टिश्यू डैमेज होता है, उसमें इसका रोल है। ये आई वांटेड टू शो यू इओसिनोफिल कैसा लगता है। इसमें तो वैसे 3 लोब्स हैं, वैसे यूजुअली 2 लोब्स होती हैं, और इसमें पिंक ग्रैन्यूल्स, मेनली इसका ग्रैन्यूल्स देखिए, इसकी जो ग्रैन्यूल्स हैं वो पिंक रेडिश गोल्डन या इवन ऑरेंज भी बोल देते हैं ग्रैन्यूल्स, वो पिक्चर की क्वालिटी पे डिफरेंट करता है। मास्ट सेल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, दोनों क्रॉनिक और एक्टिव इन्फ्लेमेशन में रोल है इसका। और इनके सरफेस के रिसेप्टर्स, ये अगर आपने याद होगा आपको
इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनिटी के चैप्टर में आपने देखा होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के में मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन होता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन वगैरह निकलते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी होती है। तो वो इस मास्ट सेल को डीग्रेनुलेट करने में जो रोल है वो है आईजी एंटीबॉडीज़ के सरफेस पे जो रिसेप्टर है वो बाइंड करते हैं मास्ट सेल के सरफेस के रिसेप्टर से। एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर आई, ये मास्ट सेल के सरफेस पे होता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी ई का जो एफसी पोर्शन है ये दोनों बाइंड करते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में, जिसकी वजह से मास्ट सेल डीग्रेनुलेट करते हैं और हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शंस में ये प्रोड्यूस होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी है। एक्यूट ऑन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑल्दो एक्यूट ऑन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू टू शो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड क्रॉनिक डैमेज, जैसे स्मोकर्स में बहुत लंबे समय से जो डैमेज होता है इरिटेंट स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में भी, दूसरे नॉट जस्ट स्मोकिंग, तो वो उनमें भी न्यूट्रोफिल्स मिल जाते हैं। अब आगे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ऑल्दो हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं ग्रैनुलोमा के बारे में, बस वही है, अ फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ऑफ्टन विद टी लिम्फोसाइट्स। हमने पढ़ा था ना कि मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स आपस में वो रिश्ता बनाते हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली ग्रैनुलोमा बनता है, क्योंकि वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज कराते हैं, और कभी कभी नेक्रोसिस भी मिलता है। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इज अ सेलुलर अटेम्प्ट टू कंटेन एन ऑफेंडिंग एजेंट दैट इज डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। क्लासिक एग्जाम्पल है इसकी आपकी ट्यूबरकुलोसिस। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स लीडिंग टू मैक्रोफेज एक्टिवेशन, और मैक्रोफेजेस नॉर्मल टिश्यू को इंजर करते हैं। यही एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बाद में इनमें ना साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है, दे बिकम एपिथेलियल सेल के जैसे लंबे लंबे हो जाते हैं, प्लम्प, तो उन्हें एपिथेलॉइड सेल बोलते हैं। और कुछ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आपस में फ्यूज़ करा के मल्टीन्यूक्लिएट जायंट सेल बनाते हैं, तो वो पूरा ग्रैनुलोमा। तो ग्रैनुलोमा में आपका मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं जो कि एपिथेलॉइड सेल्स हैं, और लिम्फोसाइट्स तो होते ही हैं, और नेक्रोसिस। ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर भी आपके पेपर में आ सकता है। दो तरह के ग्रैनुलोमास होते हैं, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमास और इम्यून ग्रैनुलोमास। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमास बेसिकली जैसे टाल्क होता है ना पाउडर में, या फिर इंटरवेनस ड्रग एब्यूसर्स जो यूज़ करते हैं, स्यूचर्स या फाइबर्स वेजिटेटिव मटेरियल के रिस्पॉन्स में आपका आते हैं ये सेल। एपिथेलॉइड सेल और जाइंट सेल्स उस फॉरेन बॉडी के सरफेस पे जाके बाइंड करते हैं। फिर इम्यून है कि परसिस्टेंट माइक्रोब है, जैसे टीबी, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो उसके रिस्पॉन्स में जो आते हैं, ठीक है, ये वही पैरासिटिक इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ की, ये आपका नीट पीजी का क्वेश्चन हो सकता है और आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ट्यूबरकुलोसिस है क्लासिक एग्जाम्पल, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कॉज करता है, और इसमें जो ग्रैनुलोमास बन रहे हैं वो केजिएटिंग हैं। बाकी जो 5 ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अगर उनमें नेक्रोसिस किसी में मिल रहा है, वो किसी में नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास मिल सकते हैं, पर केजिएटिंग ग्रैनुलोमा जो चीज़ लाइक ग्रैनुलोमास, ये हमने सेल इंजरी के चैप्टर में भी पढ़ा था, जो केशियस नेक्रोसिस है वो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस में ही होता है। और इसके ग्रैनुलोमा में क्या है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड सेल्स, फिर फाइब्रोब्लास्ट हैं, लिम्फोसाइट्स, हिस्टोसाइट, और लैंग मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल जो कि लैंगहैंस जाइंट सेल, और नेक्रोसिस, और एसिड फास्ट बेसिलाई। लेप्रोसी में भी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है, बट इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास है। सिफिलिस ट्रिपोनोमा पैलिडम और गम्मा प्रोड्यूस करता है, और सिफिलिस की अपनी भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होती है। फिर किसी में पेनफुल होता है, मतलब वो पूरा आप क्लिनिकल्स में पढ़ोगे कि पूरा वो होता है स्पेक्ट्रम सिफिलिस के जो विजिबली ग्रॉसली विजिबल लीजन्स, और माइक्रोस्कोपिक गम्मास भी होता है। फिर कैट स्क्रैच डिजीज़ है, सार्कोइडोसिस है, और क्रोन्स डिजीज़। सिस्टेमिक इफेक्ट बेसिकली इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, फीवर होगा पेशेंट को, एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स आएंगे, एक्यूट फेस प्रोटीन लिवर प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन के रिस्पांस में, प्रोटेक्टिव है वैसे ये रिस्पांस, और डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है इन्फ्लेमेशन में। किसी की आप सीबीसी देखोगे और न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, और टोटल सीबीसी बेसिकली मीन्स योर कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आप एच बी करते हो, टोटल ल्यूकोसाइन काउंट करते हो, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइन काउंट करते हो, प्लेटलेट काउंट करते हो। तो जो डब्ल्यूबीसी काउंट करते हो वो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जब बड़ा होता है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और कभी कभी कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन होती है, एक्यूट इन्फेक्शन है, तो उसमें सिर्फ ही न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस है, मतलब जो डब्ल्यूबीसी बड़े हुए हैं वो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा 90% कभी कभी न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं। सो वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर ऑफ इन्फ्लेमेशन। I hope you understood it well enough. I tried to make it as simple, as brief as possible, point to point बात करूँ, ऐसा कोशिश की है मैंने। All the very best for your exams. Thank you.